Good morning, students. Welcome to DSS online classes. In previous lectures, you have learned about Ohm's law, resistance, resistivity, etc. But our today's topic is combination of resistors. There are two types of combination of resistors. One is series combination and another is parallel combination. Right? Okay. Let's start. Combination of resistors. Our today's topic is combination of resistors. Two types of combination of resistors. One is parallel combination. First one is series combination. Series combination. And second one is parallel combination. One is series combination. If resistors are connected like this, first one resistance, then second one resistors, then third one resistors, is like this, right? This combination is said to be series combination of resistors, right? Okay. If resistors are connected like this first resistance, second resistance, then third resistance, this combination is known as parallel combination of resistors, right? In series combination, there are two series combination and parallel combination. There are two major differences. One is current same current, and second one is potential distributes. Current same. In case of series combination, current remains same and potential distributes. Its reverse will in case of parallel combination. Okay. First one is potential same, but second one is current distributes. Okay. Here current same, potential distribute. Here potential same, current distribute. I will explain these all things as we'll start actual. Okay. Potential same, current distribute, current same, potential distribute. Let's start about first one is सीरीज कॉम्बिनेशन. अभी आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, अभी आप जल्दी समझ जाओगे कि ये किस तरीके से हम लोग को ये कैसे तरीके से समझना उन सब चीजों को. ठीक है. ओके. सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर आपका ये है R1 जिसका रेजिस्टेंस है, दूसरा रजिस्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और तीसरा रजिस्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस R3 है. ये तीनों रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस. ये V वोल्ट की बैटरी यूज की गई है. तो करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे, राइट. ओके. तो करंट यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई. मतलब हर एक रजिस्टर में सेम करंट है आई, इसीलिए बोला जाता है सेम रेजिस्टेंस, सेम करंट. ओके. अब वोल्टेज के बारे में बात करते हैं. जैसे V वोल्ट दिया गया, इसका मतलब यह है कि इसको V वोल्ट दिया गया तो इसके अक्रॉस हो सकता है V1 का वोल्टेज ड्रॉप हो. जैसे ये ना वोल्टेज रख लेता, जैसे बोला गया 20 वोल्ट है, तो हो सकता है R1 बोला कि हमें अपने अक्रॉस 10 वोल्ट रखना है, ये बोला हमें 3 वोल्ट, ये बोला हमें 7 वोल्ट, तो मिल के टोटल 20 वोल्ट हो जाएगा. ये लोग अपने अक्रॉस वोल्टेज को ड्रॉप कर लेते हैं, राइट. तो V1 ये है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V2 और इसके अक्रॉस मान लीजिए V3. तो R1 से पूछा गया कि आपके अक्रॉस वोल्टेज कितना है. जब यहां पे वोल्ट मीटर लगाया
तो बोला, तो वो बोल रहा है कि V1 मेरे क्रॉस है, ये वाला V1। इससे पूछा गया कि आपके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो बोल रहा V2 है, ये वाला वोल्टेज। इसके क्रॉस पूछा गया तो आपके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो बोल रहा V3। मतलब ये पोटेंशियल V हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड V1 in V1, V2 and V3, that's why it is called potential distributes, potential distributes. Okay, now voltage drop across R1 will be I into R1 because V equal to IR, you have learned about Ohm's law, right? तो voltage across V1 is said to be I into R1, voltage drop across V2 I into R2, voltage drop across V3 I into R3, right? लेकिन हम ये सोचे कि ये लोग हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये जैसे तीन रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा सा सर्किट बन रहा है, तो अगर हम तीन रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस बोलना चाहें तो सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, बिल्कुल ऐसा सर्किट, तो ये हमारा उन सारे रजिस्टर की जगह पे एक रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रख दिया, ये V वोल्ट की बैटरी रख दी, ये V वोल्ट की बैटरी है, और ये करंट आई गई है, ये करंट आई गया है, और ये इधर आई के आके आई आ गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस V1, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप, ऐसे बोलो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, तो V1 इक्वल टू आई इंटू R1 लिखा जा सकता है। ऐसे ही सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 अगर हम बोले तो V2 की वैल्यू I इंटू R2 लिख सकते हैं आप। ऐसे ही अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 बोले उसके क्रॉस, तो V3 है जिसको हम लोग I इंटू R3 लिख सकते हैं क्योंकि करंट तो सेम है। ओके, अब इक्विवेलेंट सर्किट से यहां से फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम, ठीक है। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखो तो करंट सेम करंट, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट। इस सर्किट से अगर हम बोलेंगे फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, यहां से अगर हम बोले फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, तो V की वैल्यू I इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर होगी। अभी चार बातें, V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3 एंड V इक्वल टू आई R1, इसके बाद आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इतना हो गया। अब इन सब से पूछा जाए, जब इस सर्किट में देखोगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, राइट। तो हम लोग क्या करें, इसको सब मिटाएं और जरा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। कैसे, देखिए लिसन, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V के प्लेस पे I इंटू आर इक्विवेलेंट, V1 की जगह पे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो यहां से I इंटू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां I कॉमन कर लीजिए आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहां से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा, राइट। ओके, अगर ये हो गया, अगर ऐसे ही n रजिस्टर्स, तो इन तीन के प्लेस पे सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आ गया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गई। जैसे मान ले 20 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है, तो 20 और 10 30 और 30 और 5 35, 35 ओम हो गया। तो 35 ओम यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंगल सर्किट बना के, ऐसे सिंगल रजिस्टर का सर्किट बना के। क्लियर है? ओके, अगर ऐसे में ही हम लोग बोले कि n रजिस्टर्स, अगर यहीं से इफ n रजिस्टर्स, इफ R1, R2, R3, डॉट 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 Rn are connected in series
तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ये हो जाएगा सीरीज में। ओके, इफ ऑल रजिस्टर्स आर सेम, इफ ऑल रजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस, इफ ऑल रजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस, मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Rn इक्वल टू R हो गया, तो यहां से R इक्वलेंट कितना आएगा, R प्लस R प्लस डॉट 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 R, ऐसा n बार होगा, तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट की वैल्यू n इंटू R के बराबर आ जाएगी, क्योंकि R 2R R 3R, 3 बार R है तो 3R, 4 अगर रजिस्टेंसेज है R तो 4R, ऐसे डॉट डॉट अगर n रजिस्टेंस कनेक्टेड है R के तो nR के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाती है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो रजिस्टेंस में ऐड होता है, R1 R2 R3 इस तरीके से डायरेक्ट ऐड होता जाता है, राइट। अब हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है, बिल्कुल ऐसे सेम कॉन्सेप्ट, यही सेम सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड हम लोग को देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे मान लो एक रजिस्टर ये है R1 है, यहां से एक और रजिस्टर कनेक्ट किया गया जिसका रेजिस्टेंस R2 है, चलिए ये R1 ले लीजिए, ये R2 ले लीजिए और ये हमारा R3 ले लीजिए, और ये यहां से ये V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये V है, यहां से करंट आई जा रही है, तो इस जंक्शन पे आई A पे और ये जंक्शन है हमारा B, यहां से आई घूम के ऐसे चली आएगी। लेकिन जब इस जंक्शन से पूछा गया तो वो बोला कि यहां से करंट I1 जाएगी, क्योंकि अलग अलग रजिस्टर है तो अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 रास्ते मिले हैं तो तीनों रास्ते से करंट जाएगी, R2 से I2 जाएगी और यहां से I3 जाएगी, राइट। 3 अलग अलग पाथ है तो तीनों से करंट जाएगी, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। वोल्टेज सेम क्यों, देखो तो ये पहला तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहला क्या हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट, करंट डिस्ट्रीब्यूट। सेकंड वोल्टेज सेम कैसे, देखो इन दोनों टर्मिनल से अगर पूछा जाए तो बोले इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, तो बोलेगा V, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी V, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी V। तो अब R1 से पूछा जाए आपके अक्रॉस कितना है, बीच में कोई रजिस्टर है नहीं दूसरा, तो R1 से पूछा जाएगा इन दो टर्मिनल R1 आपके अक्रॉस कितना है, तो बोलेगा ये है, तो V के बराबर। R2 से पूछा जाए तो वो भी बोलेगा V के बराबर, R3 से पूछा जाए तो वो भी बोलेगा V3 के बराबर, मतलब वोल्टेज सेम है, मतलब पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम, राइट। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना होगा, V होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना होगा, तो V होगा, तो V इक्वल टू I1 R1, यहां से I1 की वैल्यू V बाई R1 लिख सकते हैं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना होगा, तो V की वैल्यू I2 इंटू R2 के बराबर होगी, तो I2 की वैल्यू V बाई R2 के बराबर होगी, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस R2। ऐसे सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस R3 पूछा जाए, वोल्टेज अक्रॉस R3 पूछा जाए तो V की वैल्यू I3 R3, तो यहां से I3 की वैल्यू V बाई R3 हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं कि इन तीन के प्लेस पे अगर एक सर्किट हमें करना हो तो कैसे करेंगे, इन तीन के प्लेस पे। तो ये हमने एक सर्किट बना लिया
जिसको हम लोग आर इक्विवेलेंट नाम दे रहे हैं, और ये हमने बैटरी लगा दी, ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी। यहाँ से करंट आई जा रही है, यहाँ से भी करंट आई जा रही है, यहाँ से भी करंट आई जा रही है। ठीक है, तो इस सर्किट से देखा जाए, ये हमारा कौन सा सर्किट है? इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट है। तो फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट देखा जाए, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, तो V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से I की वैल्यू V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट के बराबर होगी। I की वैल्यू कितनी होगी? V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट के बराबर होगी। क्लियर? ओके, अब हमें ये थोड़ा सा यहां पे स्पेस चाहिए। उसके बाद हम देखो, एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये, चौथी इक्वेशन ये, इन सब से हम लोग आगे डेराइव करते हैं। देखो कैसे, लिसन। तो जंक्शन ए से पूछा गया, बोला आपके पास करंट कितनी आई है? तो बोला मेरे पास टोटल करंट जो आई है वो आई है। बोला गई कितनी है? तो I1, I2, I3 गई है। तो एट जंक्शन I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I की वैल्यू V बाई आर इक्वलेंट अभी लिखे थे हम, ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो V बाई आर इक्वलेंट अगर देखें तो V कॉमन करें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V कैंसिल, तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट की वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया। अगर ऐसे ही n रजिस्टर, इफ R1, R2, R3, डॉट 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 Rn आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, तब देखो क्या होगा। अगर n रजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तब देखो क्या होगा। तब यहां से देखो क्या होगा। इधर से अगर ऐसे n रजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तो देखो आगे क्या होगा। तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn, राइट? इतना हो जाएगा। अगर सारे रजिस्टर सेम हैं, इफ ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम, दैट इज R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R के अगर बराबर है, तो यार 1 अपॉन आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डॉट 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 1 अपॉन आर, इतना होगा। ऑब्वियसली बात है, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर और 2 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 3 अपॉन आर, ऐसे डॉट 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 n अपॉन आर, राइट? तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n अपॉन आर के बराबर हो जाएगी, राइट? ओके, n अपॉन आर के बराबर। तो यहां से r इक्वलेंट कितना है कि रेसिप्रोकल कर दो, r अपॉन n। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, राइट? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो r बाई n हो गया है। n अगर 5 है तो r बाई 5, n अगर 6 है तो r बाई 6। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में n इंटू आर हुआ था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू।